Okay, students, see what we have seen in the previous lecture. We have started with a new chapter, and that was the demand function. In the demand function, we have seen the meaning of demand and then the law of demand also we have seen. Okay, now today we have to see the determinants of demand. Determinants of demand, it means what? ये नहीं हुआ था, I guess so. हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना ये वाला? हम लोगों का assumption तक हो चुका था, I guess. Yes, student, am I right? Yes. Yes, ma'am. Mhm. Yes, ma'am. Okay. See, now here we are talking about determinants of demand. So it means what? In what way we have to write this answer, or we have to think while writing the answer. Which are all the factors that are responsible for demand, that will be responsible for affecting the demand. Okay. So ये already we have Shalini, करो बेटा. हाँ. So this we have already discussed in our assumption also. assumption में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. नाउ अगेन द सेम फैक्टर विल बी कमिंग इनटू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. यहाँ पे कुछ अलग है ऐसा नहीं है. अगर आपको assumption आता है ना, देन यू कैन राइट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आल्सो. सी, यहाँ पे assumption में हम लोगों ने क्या देखा था? assumption में वी हैव सीन कि that Alfred Marshall has given only importance to the price, and he has considered only price as the most important factor which will going to affect the demand. And the other factor that can also affect the demand, he has assumed there it will be going to be as it is. It means the other things remaining the same, ceteris paribus, or we can say other things remaining constant. Okay, this word we are using because there we are assuming that the other factor which will going to affect the demand other than price, that will going to remain constant. तो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या करने वाले, जो अदर फैक्टर्स को हम लोगों ने कांस्टेंट कहा था ना, that factor we will going to discuss here. And then again with that we will again going to discuss the price of the commodity also, because price is also affecting the demand and the other factors are also affecting the demand also. So these are called as the determinants of demand. So first one here, price. Okay, you all know like price is the most important factor. Price is the one, as per the price the people will going to demand a commodity. If certain commodity has a higher value, higher prices, and but still their quality is not so good, then definitely though you are so rich but you will not going to prefer that commodity. Okay, then some of like we have seen about the snob value, तो वो भी एक effect था. So price में क्या रहेगा? It will be like if the higher prices will be there, the demand for the commodity will be less, and the prices will be less, the demand will be high. This is what the price. Now income. अभी आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे स्टूडेंट. चलो आप लोग बोलते जाओ मुझे इनकम. इनकम एंड डिमांड कैसे अफेक्ट रहेगा, कैसा रिलेशन रहेगा? कैन एनीवन टेल मी? कैसे बताने आप लोगों को? इफ द इनकम विल इंक्रीज, व्हाट विल गोइंग टू हैपन विद द डिमांड? बोलो. Demand will increase. यस, ठीक है. इफ द इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. इफ द इनकम फॉल, डिमांड also falls. Okay, then the price of related commodity. Okay, chalo, we are here discussing about the related commodity. So related commodity, it means what exactly? Whether it is we have to take any one substitute or the complementary, या दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. What do you say? अगर मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की बात करती हूँ तो वहां पे बस सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की बात आएगी, या कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी को भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ ये पॉइंट में? व्हाट डू यू ऑल से? बोलो स्टूडेंट, क्या लगता है आप लोगों को? रिलेटेड कमोडिटी मतलब जो कमोडिटी को आप डिमांड करने वाले उससे रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस वो Ma'am, both are. बोथ आर. यस, वेरी गुड. देखिए, वेदर इट इज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी लाइक टी एंड कॉफी, अगर किसी टी का प्राइस अगर बढ़ जाता है देन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू प्रेफर कॉफी ओनली. देखिए, ये हो गया सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का बात. नेक्स्ट से तुम्हारा कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी. कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी में क्या रहेगा? एज यू सेड लाइक कार एंड Pen ink. विच वन? Pen and ink. हाँ, पेन एंड इंक रहेगा, कार एंड पेट्रोल रहेगा. तो किसी एक चीज का प्राइस बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो दूसरी चीज का भी डिमांड बढ़ेगा. सो दिस वे दिस कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स and the substitute goods, their prices is also affecting the demand for our commodity. Okay, then the taste and preferences. Taste and preferences, it means here what will go, what are all points are coming into taste and preferences. So like all the points coming like your fashion, what is the current trend, then again tradition क्या है, culture क्या है, style preferences है, practices and technology.
So it will be all on that basis. So taste and preferences. Like for example, अभी नवरात्रि है, so नवरात्रि के टाइम पे क्या चीजों के लिए डिमांड ज्यादा रहेगा? अभी तो तुम लोग जाते नहीं रहोगे, आई डोंट थिंक से किसी भी सोसाइटी में और किसी भी एरिया में डांडिया खेल रहे होगे, लोग गरबा खेलते रहेंगे। बस स्टिल जनरली मुझे बताओ कि व्हेन नवरात्रि यूज्ड टू बी देयर, तो किन चीजों के लिए ज्यादा डिमांड रहता है? बोलो। डांडिया। हाँ, यस, वेरी गुड। एक तो रहता है डांडिया के लिए, दूसरा? हम उपवास में जो चीजें खाते हैं। यस, वेरी गुड। Food, fruits, यस, फ्रूट्स के लिए डिमांड बढ़ता है, उपवास के लिए जो चीजें रहती है उसमें डिमांड बढ़ता है। वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट, किसका डिमांड कम हो जाएगा? बोलो, नवरात्रि में किसका डिमांड कम हो जाएगा? सोचो थोड़ा। नॉनवेज। या नॉन-वेज। यस, गुड गुड, ठीक है। चिकन। यस यस, सबको भूख लग जाएगी, शांत बैठ जाओ अभी, ठीक है। बेसिकली नॉनवेज का डिमांड वहां पे कम हो जाएगा, लेकिन जो खाने वाले रहेंगे वो खाते ही है। ओके। एंड अदर थिंग, जो तुम लोग को ज्यादा दिखने के लिए मिलेगा मार्केट में, दैट विल बी द गेटअप, मतलब जो अपना ड्रेस रहता है, उसके लिए कुछ अलग। लहंगा चोली टाइप। विच वन क्या बोलते हैं उसको एक्चुअली? घाघरा। मैम नहीं पता। हाँ हाँ, मतलब मैं भी घाघरा करके ही जानती हूँ। एंड बॉयज के मैम अलग अलग कलर पहनते ना। हाँ, अलग अलग कलर का, उसमें मतलब पूरा वो चमकी जितना ज्यादा रहेगा, जब मतलब वेन पीपल आर प्रिफरिंग टू वेयर दोस काइंड ऑफ ड्रेस, जब गरबा रहता है। अभी तो ये साल मैंने तो टीवी पे कभी देखा नहीं कि गरबा चालू है करके, लेकिन अगर आप देखोगे ना नवरात्रि के टाइम पे, आप वो जहाँ पे देवी बैठते हैं उसके बाजू में भी अगर आप लोग घूमोगे, तो वहां पे लिटरली लोग बाहर बैठे हुए दिखते हैं। ऐसे आपको नॉर्मल टाइम पे नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे न्यू व्हाई दे आर सिटिंग देयर, बिकॉज दे न्यू लाइक दिस इज द टाइम ओनली when there will be demand for such kind of a fashion. Okay, उसके बाद में कोई नहीं डिमांड करता है इतना, ठीक है। दिवाली के टाइम पे भी ठीक है, वो पहनने के लिए अच्छा, लेकिन दिवाली के टाइम पे कोई नहीं पहनेगा, दिखते दे विल गोइंग टू वेयर इट ड्यूरिंग द नवरात्रि टाइम ओनली। सो हर एक चीज का लाइक इट इज ऑल लाइक कल्चर, कि कल्चर के हिसाब से अपना जो ट्रेडिशन है, as per that the demand for commodity is changing. Okay, then what are our preferences, what practices we are doing? So कौन सा टेक्नोलॉजी अभी ज्यादा प्रिफरेबल है करके, जैसे देखो स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली मोबाइल का नाम है, तो मोबाइल का नॉलेज मुझे इतना ज्यादा नहीं है, बस स्टिल आई एम टेलिंग यू कि जो बटन वाला मोबाइल रहता है, देखो शुरू पहले पहले क्या था कि किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, तो वो टाइम पे उस चीजों के लिए बहुत डिमांड था कि अरे भरे बटन वाला रहेगा, बस स्टिल मोबाइल है ना, तो ये बात बहुत बहुत बड़ी होती थी। लेकिन अगर आप लोग अभी देखोगे, तो अभी फिलहाल कौन से फोन के लिए डिमांड रहेगा, कौन से फोन अगर किसी के पास रहेगा तो उसको कहा जाता है कि अरे वाह, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा मोबाइल है इसके पास। यू पीपल टेल मी, ऐसा कौन सा मोबाइल अगर आपके फ्रेंड के पास रहता है तो आपको लगता है कि हाँ, ये सबसे महंगा और सबसे अच्छा वाला मोबाइल है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मोबाइल? आईफोन। अच्छा, आईफोन चाहिए करके। आईफोन। हाँ, यस, ठीक है। तो वन जिनके प्लस। आईफोन। यस, तो जिनके पास आईफोन रहेगा, तो आप लोगों का भी एक विश, भले जो भी फोन रहेगा आपके पास, बट स्टिल यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि नहीं, मेरे पास भी आईफोन आना चाहिए करके। तो वो क्या हो गया, वो ट्रेंडिंग हो गया, मतलब वो टेक्नोलॉजी प्रेफरेबल है, लोगों को लगता है कि नहीं ये ट्रेंडिंग में है तो मुझे मेरे पास भी यही होना चाहिए करके। सो जो करंट ट्रेंड रहता है उसके अकॉर्डिंग डिमांड, मतलब इसको कहा जाता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विल आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। नेक्स्ट ईयर, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यस, इसको कैसे आप लोग एक्सप्लेन करोगे? साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है, देन अगेन वहां पे भले वो पॉपुलेशन रहेगा, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है उसका वो कैसा है, मतलब यहाँ पे किस टाइप के लोग ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड अफेक्ट होता है। जैसे अगर एक बात करनी है मुझे, तो नहीं मतलब आई कैन नॉट से विलेज साइड एंड सिटी साइड में क्या चेंजेस रहेगा डिमांड के लिए। आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं इसके लिए, कि विलेज में ये पर्टिकुलर चीज का डिमांड ज्यादा रहता है और सिटी साइड में ये पर्टिकुलर चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा? व्हाट डू यू ऑल से? चलो, विल टॉक अबाउट द रेट ऑफ द कमोडिटी। रेट रेट के हिसाब से बात करो। विलेज में वी विल टॉक अबाउट हाउस, ठीक है, मतलब घर के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, मतलब घर खरीदना है, तो आपको ज्यादा रेट कहाँ पे मिलेगा सुधा, मतलब ज्यादा प्राइस कहाँ पे देना पड़ता है, और ऐसा सिटी एरिया। सिटी एरिया, और ऐसा क्यों होता है, मतलब व्हाई? बिकॉज सिटी एरिया में इफ यू गोइंग टू फाइंड
कि अगर हम लोग 1 BHK लेने जाएंगे तो लिटरली उसके लिए 40-50 लाख तक का खर्चा आता है। लेकिन अगर गांव साइड में हमें 40-50 लाख में क्या मिलेगा, बताओ मुझे। 40-50 लाख में हम लोग को 1 BHK मिलेगा और एक बंगलो टाइप कुछ घर मिल जाएगा। ये बड़ा मिलेगा मैम। बड़ा घर मिलेगा ना। हाँ, तो ये डिफरेंसेस क्यों है, मतलब ऐसा क्यों सिटी साइड में इतना प्राइजेस क्यों उसका ज्यादा है और यहाँ पे क्यों गांव में क्यों इतना कम है, क्या रीजन रहेगा इसके मै पीछे? मैम पीपल ना फैसिलिटी ज्यादा देखते हैं, जहाँ पे ज्यादा मिलता है फैसिलिटी वहाँ पे डिमांड ज्यादा रहता है। हाँ, पीपल आर लुकिंग फॉर द एमिनिटीज, दैट्स ट्रू, एमिनिटीज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, एमिनिटीज तो है लेकिन जितना जहाँ पे पॉपुलेशन है, मतलब अगर हम लोग मुंबई की बात करें, सी मुंबई एंड पुणे वी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, दोनों। इवन पुणे में भी क्राउडेड है, मुंबई में भी क्राउडेड, लेकिन आप दोनों को कंपेयर करो, मुंबई एंड पुणे, आप किसको बोलेंगे कि ये ज्यादा क्राउडेड है? मुंबई को कहोगे, पुणे को कहोगे? मुंबई। यस, मुंबई सिटी इज मोर क्राउडेड। अगर आप वहाँ के घर का रेट देखोगे तो पुणे के रेट से मुंबई में बहुत ज्यादा महंगा है। वाई इट इज सो? भले पुणे में भी अम्यूनिटीज आर अवेलेबल है, अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड मुंबई में कंसिडर करती पुणे ही रहेगा, कि जहाँ पे एजुकेशन, अगर मतलब किसी को बोलते हैं ना कि डेवलप, वहाँ पे सेटल्ड होना है, तो द सेम काइंड ऑफ अ फैसिलिटी दे विल आल्सो गोइंग टू गेट इट इन पुणे आल्सो। लेकिन मुंबई में ज्यादा लोग हैं, मुंबई में ज्यादा क्राउड है, वहाँ पे एरिया कम पड़ता है और घर के लिए ज्यादा, प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा डिमांड है, बिकॉज पीपल आर सेटलिंग इन मुंबई एंड ऑब्वियसली उनको अगर सेटल होना है, उसी जगह पे रहना है, तो एक खुद का घर तो होना चाहिए, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक खुद का तो होना चाहिए। सो देयरफॉर इट इज मैंडेटरी ऑन देम कि घर खरीदना ही है करके। ठीक है, तो ये जब आता है कि बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये क्यों होता है, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है करके डिमांड वहां पे ज्यादा है, और इतना ज्यादा डिमांड है कि प्रॉपर्टी वहां पे कम पड़ता है, सो प्रॉपर्टी कम है, डिमांड ज्यादा है, इसके लिए वहां पे प्राइजेस भी ज्यादा रहते हैं। सो दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा पॉपुलेशन कितना है, कौन से एरिया में है, देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, पॉपुलेशन का क्या कंपोजिशन है, कि वर्किंग एज है क्या, ओल्ड एज है क्या, चाइल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक कमोडिटी का डिमांड रहता है। ओके, so this is all about the size and distribution of population. Okay, now next we will talk about the consumers expectation. मतलब यहाँ पे consumer expectation that can be about the future expectation about the price of the commodity, price of related commodity, future availability, and even we can say the consumer's income. Okay, these are all the points that we can consider into the consumer's expectation. अभी आप लोग मुझे बताओ क्या एग्जांपल दोगे यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर के बारे में कंज्यूमर को लग रहा है कि यहाँ पे इधर उधर वो चेंजेस होने वाला है, तो उसकी वजह से प्रेजेंट का डिमांड हम लोग अफेक्ट करते हैं। क्या एग्जांपल दोगे आप लोग मुझे इसके लिए? मैम इस किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में हाई होगा ऐसा लगता है, तो इसको ना अभी से ही परचेस करना शुरू कर यस, देते हैं, अभी से भले ही ही वो एक्सपेंसिव हो। बराबर, एकदम करेक्ट। तो आप मुझे इसके लिए क्या एग्जांपल दोगे एकदम बेस्ट, जो आपके घर पे भी करते रहेंगे लोग, बोलो क्या लगता है, क्या एग्जांपल रहेगा इसके लिए जो? गोल्ड मैम। हाँ, यस, सबके घर में यही रहता है, गोल्ड। ठीक है, ऐसे जैसे उनको भनक लगती है कि बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि किसी की पापा इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, बट लेकिन घर की जो लेडीज रहते हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू इट, कि चलो गोल्ड खरीदना है करके, रेट्स कम हो गया, चलो जल्दी लेके रखो करके, भले पैसा वहां पे किसी और चीज के लिए रखा रहेगा, नहीं नहीं रखो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये अपने लेडीज लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है करके। अगर यही चीज मैं आप लोगों को कहूंगी, आप लोगों को किस में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग क्या करोगे सूरज? सो यू आर एट द नाउ यू आर कमिंग एट द एज ऑफ वर्किंग ग्रुप। ठीक है, आप लोग वर्किंग ग्रुप में आते हो, और आप अभी थोड़ा आपका जो ट्रेंड है वो अलग है, जो पहले लोगों का थिंकिंग था वैसे अभी आप लोगों का थिंकिंग नहीं। अगर मैं आपको कहूंगी कि आपको ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहोगे? मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे रही हूँ। वन इज द प्रॉपर्टी, अदर वन इज द गोल्ड, देन आई एम टेलिंग यू अबाउट द शेयर मार्केट, एंड अदर वन इज द बिजनेस। बताओ आप किसमें करना ज्यादा सेफ समझोगे, या फिर आप समझोगे कि नहीं ये सबसे बेस्ट मेथड है? Property. यस, उमेरा इज सेइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैम। Yeah, Deepali also property. प्रॉपर्टी। Okay. बिजनेस मैम। रवि का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? रवि बिजनेस मैम। रवि बिजनेस करेगा, ठीक है। और
और बॉयज में मुझे बॉयज का और ज्यादा सुनना है। गर्ल्स का ओके, गर्ल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे बॉयज से एक का ही आंसर आया। यस, अनिकेत वांट टू गिव मी आंसर। अनिकेत, अनिकेत है, फेज है, यू वांट टू गिव मी आंसर? यस, आप लोग किसमें इन्वेस्ट करोगे? इन या नितिन, नितिन इज ऑल्सो देयर, रोहित इज देयर, शिवम। प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी, वेरी गुड। ओके, सो ओनली रवि का आंसर अलग आया बिजनेस के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि रवि इज अ काइंड ऑफ अ बॉय हु इज रेडी टू टेक अ रिस्क। एम आई राइट रवि? आप ऐसे हो कि चलेगा ना रिस्क लेके, क्या देखते हैं करके, इज इट लाइक दैट? ओके ओके, बिकॉज बिजनेस, ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो बिजनेस भी अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत अच्छा, उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ के मतलब वो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म जैसा बेनिफिट हो जाएगा। बट बिजनेस में बहुत रिस्क रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इवन अगर आप मुझे भी कहोगे गोल्ड से कंपेयर, तो बिजनेस का छोड़ ही दो, अगर मुझे गोल्ड, शेयर्स एंड प्रॉपर्टी में कंपैरिजन दिया जाएगा, तो इवन आई वुड लाइक टू प्रिफर गो विद द प्रॉपर्टी। मुझे भी लगता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू कभी कम नहीं होता, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ, लेकिन जिनको बहुत घाई है ना पैसा कमाने की, तो वो लोग शायद गोल्ड में भी नहीं जाएंगे, दे विल गोइंग टू प्रिफर शेयर मार्केट। व्हाट यू ऑल से स्टूडेंट, रहेगा या नहीं ऐसा? जिनको बहुत जल्दी बट मैम पैसा रिस्क भी होता है। हाँ, शेयर्स में रिस्क होता है, बट रिस्क किनके लिए होता है कि जिनका नॉलेज अच्छा नहीं रहता, उनके लिए रिस्क रहता है। जो एकदम अप टू डेट रहते हैं ना कि ये कंपनी का क्या हो सकता है करके, ये कंपनी का अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो मुझे इस कंपनी का पूरा इन एंड आउट पता है। तो अगर जिन लोगों को ये पूरा नॉलेज रहेगा ना स्टूडेंट, मैं आपको पूरा गारंटी देती हूँ कि शेयर्स में वो लोग कभी लॉस में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। और मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में देना चाहती हूँ। मतलब हमारे ही इधर का, मतलब पहचान में से है। तो उन्होंने 2009 में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में। दैट वाज, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट शेयर एक्चुअली। तो उन्होंने 2009 में 1 लाख अमाउंट का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और अभी 2020-21 में इट हैज रीच टू 68 लाख। क्या लगता है आपको, अच्छा प्रॉफिट है? व्हाट डू यू ऑल से? नहीं। अच्छा प्रॉफिट है या नहीं है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा प्रॉफिट है मैम। अच्छा प्रॉफिट है ना? क्यों ऐसा, क्यों हम लोग, बिकॉज सी यू कंपेयर विद द गोल्ड, यू कंपेयर विद द बिजनेस। बिजनेस के लिए नो, इफ अगर वो सक्सेसफुली हुआ ना तो बिजनेस उससे भी ज्यादा कमा के दे सकता है, कोई खराब नहीं। आई थिंक बिजनेस कैन गिव यू मोर रिटर्न कंपेयर विद द शेयर्स ऑल्सो। लेकिन बहुत रिस्क है बिजनेस का, कभी चलेगा कभी नहीं, इसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी कंपेयर करोगे प्रॉपर्टी, अगर मैं 2009 में 1 लाख का खरीदती तो उसका अभी तक का वैल्यू 68 तक का तो नहीं हो सकता था, ऑब्वियसली नहीं होता था। ठीक है, 1 लाख वाला अगर आता तो वो अराउंड कुछ अभी तक 6 या 7 लाख, मे बी लेस देन 10 लाख तक का अमाउंट हो जाता, बट नॉट मोर देन दैट, ऐसा मेरा कहना है। बिकॉज 10 साल में इतना ज्यादा रेट्स नहीं बढ़ते हैं प्रॉपर्टी के। लेकिन शेयर्स में यस, अगर वो शेयर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा सो यू कैन अर्न दैट प्रॉपर्टी। और इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तो तुम लोग का एज नहीं है। मे बी आफ्टर TY ऑल्सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो इमिडिएटली। बट अभी भी चांस है स्टूडेंट, यू स्टार्ट लर्निंग इट, थोड़ा 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 करके स्टडी करो इसका अच्छे से। और जब आप लोग कमाना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो उसके अंदर, ज्यादा अमाउंट का नहीं कि बाबा नुकसान हो गया तो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो डू स्टडी वेल। और इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट, मतलब भले आप लोग जॉब पे रहोगे वट एवर, बट स्टिल एक ऐसा कुछ और करना चाहिए तुम लोगों ने। करोगे या नहीं? एडिशनल बिजनेस के लिए प्लान करो। आई थिंक मुझे लग रहा है हमारे क्लास में रवि जरूर एडिशनल बिजनेस करेगा, बाकी बॉयज का मुझे पता नहीं। हम सब लोग प्रॉपर्टी खरीदते बैठेंगे, लेकिन रवि बिजनेस करता रहेगा। यस रवि, विल यू? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा बिजनेस करना कि जहाँ पे हम लोग आके तेरे बिजनेस को भी इंजॉय कर सके। ठीक है, मतलब ओके तू समझ चलेगा। जा, तू समझ जा, हम लोग फूड बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट बराबर है या नहीं? वी विल टेक पार्टी फ्रॉम यस रवि। मैम। यस। ओके ओके ओके, सो दिस इज अबाउट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी मतलब डिमांड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन हियर,
एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग मुझे। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि आप क्या करोगे इस जगह पे, ठीक है। चलो अभी कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कोको कोला ब्रांड के लिए कौन सा एक्टर है? कोको कोला के एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा एक्टर है? वेदर शाहरुख खान इज देयर फॉर आई थिंक पेप्सी, एम आई राइट? यस स्टूडेंट? Yes, नो ma'am. मैम। नहीं? ठीक है, अभी फिलहाल जो ट्रेंड में है एक्टर, वो कौन सा है आपके हिसाब से, जो ज्यादा ट्रेंड मतलब ज्यादा बोलते हैं ना पॉपुलर है? हु इज दैट? डोंट टेल मी अबाउट रणवीर सिंह, उसको छोड़ के बाकी का बोलो। यस, विच एक्टर यू कंसिडर कि बॉलीवुड एक्टर, हाँ, विच एक्टर यू कंसिडर कि वो अभी ज्यादा डिमांड में है करके, मतलब पॉपुलर है? अच्छा, रणवीर सिंह आ रहा है दिमाग में, तो चलो कोई बात नहीं, रणवीर सिंह ही बोलो। अच्छा, कोई कोई मूवीज नहीं देखता तुम्हारे अपने क्लास में? सब लोग इतने इतने तो सभ्य नहीं हो सकते। चलो बोलो। नो मैम, देखते हैं। देखते है ना भाई। अच्छा, एनिमेटेड मूवी देखते हैं क्या ज्यादा, ऐसा है? मैम एनिमे देखते हैं, एनिमे एनिमे देखते हैं मतलब? कार्टून मैम, दूसरे कंट्री अच्छा, के। एनिमेटेड वन, हाँ, कार्टून देखते हो। अरे तुम लोग अभी बड़े हो चुके हो, अभी क्या बोलेगे तुम लोग कार्टून मूवी मैम देखते हो? दूसरी कंट्री में पॉपुलर है। हाँ, दैट्स हाँ ग्रेट। मैम, और एडवेंचरस भी रहता है। यस। अच्छा, क्यों कोई कह रहा है लेकिन आवाज ब्रेक हो रहा है करके। एनिमेटेड में अभी रिसेंटली तो मतलब इतना ज्यादा मूवी, वो तो मतलब मेरा मेरा छोटा लड़का है करके, तो उसके साथ में वो व्हाट वाज दैट, मोआना, देन अगेन एक दूसरा, अभी तो दूसरा कुछ आला वगैरह तो ती ती हे होते बघ ती चायनीज। हाँ, मैम वन पीस देखते साथ। नहीं, एक राया मूवी, वो सब वैसा वाला देखा है अभी तक, लेकिन ऐसा बाकी कुछ एनिमेटेड वाला अभी फिलहाल तो मैंने नहीं देखा हुआ है, तो मुझे अभी का पता नहीं क्या सिचुएशन है। ओके, लेकिन लग नहीं रहा है तुम लोगों को देख के कि तुम लोग अभी बॉलीवुड मूवी भी देखते रहोगे करके। तो चलो फिर ये एग्जांपल छोड़ देते हम लोग, ये एग्जांपल नहीं देता अगर तुम लोग को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो बॉलीवुड में। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग क्या एग्जांपल देते हैं? अच्छा, तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? यस मैम। यस मैम। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कौन सा आपको लगता है कि ये ऐप है, उसके थ्रू कपड़ों के बारे में? अमेजोन। विच वन? अमेजोन। अच्छा, अमेजोन। फ्लिपकार्ट, अमेजोन। हाँ। फ्लिपकार्ट। अच्छा, चलो मुझे बताओ कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, एंड मिंत्रा इज ऑल्सो देयर। मुझे बताओ सब में, ये चारों में से कौन सा ऐप आपको ज्यादा डिस्काउंट देता है? क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का? और कौन सा मैम, अदर ऐप जो है ना वो डिलीवरी चार्ज करते हैं, बट अमेजोन पे डिलीवरी नहीं चार्ज नहीं रहता है। नहीं, अमेजोन भी डिलीवरी चार्जेस लेता है। आई थिंक नो मैम, मैंने तो 2-3 बार मंगाए। तुम्हारे घर पे प्राइम वीडियो है क्या? प्राइम वीडियो आप लोगों ने लिया हुआ है? यस मैम। नो मैम। मतलब जो जिनके घर में प्राइम प्राइम वीडियो लिया हुआ है वो लोगों का अमेजोन नहीं चार्जेस लगाता, जितना मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। बराबर है मेरा? किसके पास घर, किसके घर पे है प्राइम वीडियो? अनिकेत, किसके घर पे है? नो मैम। नहीं है? ओके, किसी ने कहा कि है प्राइम वीडियो करके किसी के घर पे, तो मतलब पहले था। बॉय ने बोला। हाँ, पहले था हमारे घर पे भी, तभी हम लोग को नहीं लगते थे अमेजोन के चार्जेस, लेकिन अभी लगते हैं। अभी एक नया ऐप है मीशो करके, यू नो दैट मीशो ऐप? यस। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, वो लोग बिल्कुल भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगाते हैं, और उनका प्रोडक्ट भी बहुत सस्ता रहता है। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कभी वो ऐप को? यस मैम। लेकिन वहाँ पे फूड वगैरह नहीं रहता है, इट इज ऑल अबाउट लाइक योर डेली यूज कमोडिटी, तो फूड के बारे में नहीं रहता है। ओके, वो फूड डिलीवरी वहाँ पे नहीं है। ओके, सो इट विल लाइक जिनका पब्लिसिटी ज्यादा रहेगा, जो लोग ज्यादा इफेक्टिवली एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को उनके बारे में ज्यादा पता रहता है, वो ऐप के बारे में ज्यादा पता रहता है, उसी ऐप से वो लोग फिर देखते हैं। लेकिन जैसे तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, यू पीपल नो 4 and 5 ऐप, तो आप लोग क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे कि कहाँ पे मुझे कितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ पे कितने रेट पे अवेलेबल है।
भले ही ऑनलाइन है, लेकिन स्टूडेंट मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि दो इट इज ऑनलाइन, दे आर सेलिंग द कमोडिटी ऑनलाइन, लेकिन वहां पे भी रेट्स में डिफरेंसेस रहते हैं। बराबर है, आप लोगों ने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है? स्नैपडील में यस मैम। कमोडिटी हाँ थोड़ा अलग प्राइस पे रहेगा, अमेजोन पे वही सेम कमोडिटी वही ब्रांड का कुछ अलग प्राइस में रहता है। So this way, so there also depend on the advertisement, like how much you are giving the discount, तो उसके बेस के ऊपर आप कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और देन आप डिमांड, आपके लिए वो कमोडिटी का डिमांड बढ़ना कम रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा फनी रहेगा, वो मतलब जो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, वो एक भी एक रहता है कि एडवर्टाइजमेंट विल गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अभी मुझे एडवर्टाइजमेंट मतलब जैसे यूट्यूब आ चुका है, मैक्सिमम टाइम वी यूज टू बी ऑन यूट्यूब, तो कोई अभी इतना ज्यादा टीवी का एडवर्टाइजमेंट देखता नहीं है। तो अभी मैं आपको एक, मेरे हिसाब से तो मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊंगी, मुझे बहुत पुराने पुराने वाले एग्जांपल पता है कि जब टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज्ड टू वॉच टीवी, तो मुझे वो एड्स बहुत अच्छे लगते थे, तो वो कमोडिटी क्या है करके मुझे जानने के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था। अभी के लिए आई कैन नॉट से यू एनीथिंग, आई कैन नॉट गिव एनी एग्जांपल फॉर दैट। ओके, सो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट कि कितना इफेक्टिवली हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट, दैट विल आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। देखो अभी यहाँ पे है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, कभी कभार क्या होता है कि वी वांट टू बाय सर्टेन कमोडिटी, लेकिन उतना पैसा अपने पास रहता नहीं है, देन व्हाट आर वी डूइंग, वी आर आस्किंग फॉर द क्रेडिट एंड देन वी आर पेइंग इट थ्रू द ईएमआई, ये भी रहता है। चलो मैं अभी आपको एक कंडीशन, एक सिचुएशन बताती हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि ये दोनों में से किन चीजों के लिए ज्यादा डिमांड रहेगा। ठीक है, एक है आप लोगों को कार खरीदनी है सपोज, ओके, कार विल बी लाइक, कौन सा कार खरीदना है आप लोगों को, आप लोग मुझे नाम बताओ, ज्यादा बड़ा भी मत बोलो। यस, वी विल टेक वैगनर, ओके, ठीक बुगाटी। है। अच्छा ठीक है, चलो वैगनर ले लेते हैं फिलहाल के लिए, सिंपल के लिए। ठीक है, वैगनर है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ वैगनर आई एम अज्यूमिंग, आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द प्राइस ऑफ वैगनर, बट मैं जस्ट अज्यूम कर रही हूँ, इट कुड बी कॉस्टिंग अराउंड 6 to 7 लाख, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 7 लाख पे है। तो आपको दो शॉप है, एक शॉप में मतलब जहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि आप डाउन पेमेंट, हम लोगों को 7 लाख का गाड़ी है तो आप लोग मुझे डाउन पेमेंट 2 लाख का करके दो, और जो रिमेनिंग 5 लाख रहेगा उसके ऊपर आपको हम लोग लोन बनवा के देंगे, ईएमआई रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7% का, या 7% 8% कम हुआ, ठीक है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। दूसरे शॉप में वो लोग कहते हैं आपको कि आपको डाउन पेमेंट बस 50,000 देना है, और हम लोग आपको मतलब बाकी जो बचे हुए 6.5 लाख है उसका लोन करवा के देंगे, देन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कुछ 7%। अभी आप लोग मुझे बताओ आप कौन से शॉप से खरीदना चाहोगे, जिसका डाउन पेमेंट ज्यादा है उससे, या जिसका डाउन पेमेंट कम है उनसे, किससे किन से खरीदोगे आप लोग? जस्ट इमेजिन करो आपके पास ये सिचुएशन है, आप लोग क्या करोगे, पैसा आपके पास इतना ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, कैसे, मतलब कहीं से तो अरेंज कर सकते हो, तो क्या व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस, आप लोन ज्यादा लेना प्रेफर करोगे या ज्यादा पैसा देना पहले से ही प्रेफर करोगे? ज्यादा पे करने। ज्यादा पे करना प्रेफर करोगे, ठीक है, मतलब फरीन करेगी कि जहाँ पे डाउन पेमेंट ज्यादा है मैं वहां पे भर दूंगी, और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लोन मेरा थोड़ा कम रखूंगी, सो दैट ईएमआई मेरा हर महीने का कम जाएगा। वेरी गुड फरीन, मैं भी रहती तो मैं भी शायद ऐसा ही करती, लेकिन यहाँ पे और यस मैम। देखती है कि इट डिपेंड कि लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है। इफ आई डोंट हैव 2 लाख रुपीज, तो शायद मैं वह नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं उस टाइम पे क्या करूंगी कि चलो जहाँ पे मुझे कम डाउन पेमेंट में मिल रहा है मैं वो वाला खरीद लेती हूँ, और जैसे मेरे पास पैसा जमा हो जाएगा वैसे मैं फटाफट, मुझे ईएमआई तो चलता ही रहेगा, बट मैं जितना जल्दी पैसा जमा करूंगी उतना मेरा ईएमआई भी खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक स्ट्रेटेजी रह सकता है। यस और नो? तो मुझे व्हाट यस मैम। आई वांट टू गेट दिस आंसर फ्रॉम द बॉयज, बॉयज का भी थिंकिंग क्या रहता है, आई वांट टू सी दैट। यस, फ्रॉम द बॉयज विच वन यू विल प्रेफर, लो डाउन पेमेंट और द मैम हायर डाउन पेमेंट? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ओके ओके ओके, ठीक है। अगर दोनों भी जगह पे सेम है, दोनों भी जगह पे 2 लाख का डाउन पेमेंट मांग रहे, लेकिन एक कह रहा है कि मैं मेरे बैंक से आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दूंगा, और एक कह रहा है कि मैं 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दूंगा, तो आप कहाँ से खरीदोगे?
7%. Yes, 7%. Okay. So what is that indicating? Depend upon the cost of credit and the rate of interest also, demand for commodity will going to get affected. Now the last factor here, that is social factor. तो social factor में क्या है कि तुम्हारा custom क्या है, tradition क्या है, practices क्या है, religion कौन से religion से हो आप लोग, आपका क्या culture है, that everything will going to affect the demand for commodity. उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखो, the practice of exchanging traditional sweet during Indian festival has now been replaced to some extent by exchange of chocolate. This change has been taken advantage of by chocolate manufacturer. मतलब पहले कैसे था कि किसी ने अगर स्वीट्स दिया हम लोगों को तो हम लोग भी उनको स्वीट्स देते थे, लेकिन मतलब नहीं, मतलब एक्सचेंज, मतलब कोई फेस्टिवल है तो किसी के घर पे हम लोग स्वीट्स लेके जाते थे, बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग. They are saying कि like instead of that the people are giving preference to give the chocolates to the family. ठीक है, मतलब हम लोग स्वीट्स नहीं लेके जाते, हम लोग चॉकलेट्स लेके जाते हैं किसी के घर पे जाना है तो. ऐसा आप लोग करते हो? यस, अगर किसी के घर पे Yes, ma'am. मतलब आप स्वीट्स नहीं लेके जाओगे लेकिन चॉकलेट्स लेके जाओगे, ऐसा करोगे? यस, इज इट लाइक दैट? मतलब मुझे जानना है कि सच्ची में अभी ऐसा ट्रेंड है क्या? Yes, ma'am. Most of बच्चे तो चॉकलेट ही खाते हैं. अच्छा, तो डिपेंड ना कि उस फैमिली में बच्चे हैं तो, है ना? हाँ, डिपेंड. Yes, ma'am. हाँ, अगर आप लोग एक ठीक है, चलो और एक सिचुएशन, जैसे कि अगर दिवाली का टाइम आ रहा है और अगर आपके पापा या आपके बड़े भाई या बड़ी बहन किसी ऑफिस में काम करते रहेंगे तो उनको स्वीट बॉक्स मिलता रहेगा, लेकिन स्वीट बॉक्स में भी अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है. अभी वो लोग ज्यादा स्वीट्स प्रेफर देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स देते हैं. व्हाट दे आर ऑफरिंग ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल? पता? यस, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? क्या मिलता है ज्यादा? अगर मतलब कोई आपके घर पे है तो अगर ऑफिस से कुछ मिलता है दिवाली के लिए तो वो स्वीट्स मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे या चॉकलेट्स मिलेंगे? स्वीट. अच्छा, स्वीट्स मिलते हैं. Sweet. आई थिंक मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ड्राई फ्रूट ज्यादा दिए जाते हैं, अभी स्वीट्स नहीं दिए जाते, बिकॉज स्वीट्स का क्या रहता है, एक लिमिटेशन रहता है कि हाँ ड्राई फ्रूट ज्यादा देते हैं, बिकॉज स्वीट्स में क्या रहता है कि ये पर्टिकुलर दिन में वो खाना चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो जाता है करके. तो अभी कंपनीज भी ज्यादा करके ड्राई फ्रूट्स प्रेफर करते हैं या फिर चॉकलेट्स प्रेफर करते हैं, स्वीट्स के लिए नहीं इतना रहता है. और अगर इवन घर पे भी मिठाई का बॉक्स आता है तो घर पे मम्मी भी बोल देती, भले हम लोग फ्रिज में रखते हैं उसको लेकिन कैसे भी करके 2-3 दिन में वो खत्म करना है. तो जब ऐसा इंफॉर्मेशन आता है कि जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो खुशी तो बहुत होता है या नहीं? यस. Yes, ma'am. नो मैम. मैम. नहीं खुशी होता, नहीं मुझे तो बहुत खुशी होता है अगर नो कोई मैम. नहीं, लेकिन आई थिंक गर्ल्स रियली लाइक द स्वीट, बॉयज लोग सब बोरिंग रहते लगता है. ठीक है, गर्ल्स को पसंद नहीं लगता है स्वीट्स खाना. No, ma'am. I eat small. अच्छा, यू पीपल आल्सो लाइक द स्वीट. ठीक है, बिकॉज जनरली अगर टारगेट मिलेगा कि एक दिन में ये बॉक्स खत्म करना है तो बस मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता इतना जल्दी इतना खत्म क्यों कर दिया करके, तो थोड़ा एंजॉय मैम करके अगले खा दिन सकते. डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा. क्या क्या? यस रवि. अगले दिन डेंटिस्ट के पास में. अच्छा. ठीक है. ओके ओके, सो दीज आर ऑल लाइक डिपेंड कि लाइक अपना ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड चेंज होता रहता है. ओके स्टूडेंट, so this is all about the determinants of demand. Kusum is there. Kusum, if you are there, please send me the screenshot of participant. Yes, Kusum. Yes, ma'am. हाँ, okay. Okay, So ma'am. then 1 minute हो रहा है student, our lecture will get over. I hope you understood the determinants of demand. और फिर कल से हम लोग start करेंगे next lecture पे demand function. Okay. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye student. Bye, ma'am. Bye. बाय मैम. Bye student. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.